Chapter number 15, Air Around Us. We have learned in chapter 9 that all living things required air. But have you ever seen air? You might not have seen air, but surely you must have felt its presence in so many ways. How you noticed it when the leaves of the trees rustle or the clothes hanging on clotheslines sway, page of an open book being fluttering when the fan is switched on. The moving air makes it possible for you to fly your kite. Do you remember activity 3 in chapter 5 in which you separated the sand and sawdust by winnowing? Winnowing is more effective in moving air. You may have noticed that during storms the wind blows at a very high speed. It may even uproot trees and blow off the rooftops. क्या आपने एयर मीन्स हवा को देखा है? नहीं देखा ना? पर श्योरली आपने उसे अनुभव किया है, क्योंकि हम कई सारी ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हमें अनुभव होता है कि हमारे आसपास एयर होती है, हवा होती है. हैव यू एवर प्लेड विथ अ फिरकी फिगर 15.1? क्या आपने फिरकी से खेले हो आप? यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स के फिरकीज होती है. ओके, एक्टिविटी नंबर 1, लेट अस मेक अ फिरकी of our oven. Following the instructions, show figure number 15.2. Hold the stick, the ficky, and place it in different direction in an open area. Move it a little back and forth. Observe what happens. Does the ficky rotate? What makes a ficky rotate? Moving air, isn't it? Have you seen a weather clock 15.3? It shows a direction in which the air is moving at that place. इस एक्टिविटी में दिखाया गया ऐसे आपने सिंपल फिरकी बनाई और आप देखिए कि वो घूम रही है क्या? अब घूम रही है तो उसे कौन घुमा रहा है? क्या एयर इसमें काम कर रही है? और आपने फिगर 15.3 में जो फिगर दिखाई गई है उसे देखा होगा. सो ये है अ वेदर कॉक. ओके, जिस साइड से हवा आती होगी उसी साइड वो जाके रुकेगी. ओके, 15.1, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्लोज योर फिस्ट. व्हाट डू यू हैव इन इट? नथिंग. ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट. एक्टिविटी नंबर 2, टेक एन एम्प्टी ओपन bottle. Is it really empty or does it have something inside? Turn it upside down. It's sometime inside it now. Now dip the open mouth of the bottle into the bucket filled with water as show figure number 15.4. Observe the bottle. Does water enter the bottle? Now tilt the bottle slightly. Does the water now enter the bottle? Do you see bubbles coming out of the bottle or hear any bubbly sound? Can you now guess what was in this bottle? अब आपको इस एक्टिविटी में दिखाया गया है ऐसे एक खाली बॉटल को आप जो बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है उसमें आप डुबोएंगे. अब थोड़ी सी इसे क्रॉस कीजिए तो क्या आपको इसमें कुछ बबल्स दिखाई दे रहे हैं और क्या आपको कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है जैसे कि बबली साउंड? ओह, तो अब आप फील कर सकते हैं कि इसमें क्या होगा. आपने महसूस किया कि उसमें क्या है जिसके लिए वो साउंड हो रहा है. यस, यू आर राइट. It is air. What was present in the bottle? The bottle was not empty at all. In fact, it was filled completely with air even when you turned it upside down. That is why you notice that water doesn't enter the bottle when it is pushed in an inverted position.
as there was no space for air to escape. When the bottle was tilted, the air was able to come out in the form of bubbles and water filled up the empty space that the air is occupied. Yes, आप सही हो कि जो खाली बॉटल थी उसमें क्या था, तो उसमें एयर थी। अगर आपने उस एक्टिविटी जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है ऐसे, आपने पहली फिगर में दिखाया गया है ऐसे आपने अंदर वो मोड़ी, तो उसमें पानी नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसमें जो एयर है वो बाहर निकल सकती नहीं थी। पर आपने अगर फिगर 2 में दिखाया गया है ऐसे आपने की, तो तुरंत ही एक साइड से वायु निकलती गई, एयर निकलती गई और एक साइड से जो स्पेस बाकी बचे है उसमें धीरे धीरे वो स्पेस में पानी भर गया। एक सिंपल। दिस एक्टिविटी शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. इट फिल्स ऑल द स्पेस इन द बॉटल. इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर around us. Air has no color and one can see through it. It is transparent. आपने इस एक्टिविटी को किया तो आपको इजीली पता चल गया होगा कि किस तरह से वो हर जगह पे होती है और उसका कोई रंग नहीं होता. ओके. Our earth is surrounded by a thin layer of air. This layer extends up to many kilometers above the surface of the earth and is called atmosphere. As we move higher in the atmosphere, the air gets rarer. हमारे अर्थ पे एयर का एक थिन लेयर है, पतला लेयर है और वो कई किलोमीटर तक दूर दूर तक है और इसे हम एटमॉस्फेयर मीन्स के वायुमंडल कहते हैं. नाउ कैन यू थिंक, माउंटेन्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देम व्हाइल क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स. आप फिगर 15.5 में देख सकते हैं कि माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विथ देम. अब आप जान गए होंगे कि जो पर्वतारोही है वो माउंटेन पे चढ़ते हैं तब अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा पतली होती जाती है. ओके. 15.2 What is air made up of? Until the 18th century, people thought that air was just one substance. Experiments have proved that it is really not so. Air is mixture of many gases. What kind of mixture is it? Let us find out about some of the major components of this mixture one by one. 18th सेंचुरी में लोग सोचते थे कि एयर सिर्फ एक सब्सटेंस है, पर धीरे धीरे प्रयोग करने से साबित हुआ कि जो एयर है वो कई कंपोनेंट्स मिक्सचर से बनी है. ओके. अब आइए हम देखते हैं कि ये मिक्सचर किसका है. देन फर्स्ट, वाटर वेपर. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट एयर कंटेन्स वाटर वेपर. वी ऑल्सो शो दैट वेपर एयर comes in contact with a cool surface. In condensate and drops of water appear on the cooler surface. The presence of water vapor in air is important for the water cycle in nature. वाटर वेपर, जैसे कि हमने पढ़ा है कि वाटर वेपर कितना यूज़फुल है. हमने पढ़ा है कि जब वाटर वेपर है जो ठंडे चीज़ के टच में आता है तो वो कैसे ठंडे पृष्ठ करता है. ओके. और जो पानी की बूंदें हैं वो ठंडे पृष्ठ के ऊपर सरफेस पे हमें दिखाई देती है. और प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वाटर साइकिल के लिए भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ऑक्सीजन. एक्टिविटी नंबर 3. इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, fix 2 small candles of the same length on table. Light both the candles. Cover one of the candles with an inverted glass tumbler. Observe both the candles carefully. Do both candles continue to burn or go off? फिगर 15.6 में दिखाया गया है ऐसा आप अपनी टीचर के सामने ये एक्टिविटी कीजिए और 2 मोमबत्ती जलाकर उस पर ग्लास रख दीजिए और उसमें नीचे पानी डालिए.
क्या आप देख सकते हैं कि मोमबत्ती जल रही है, कैंडल जल रही है या फिर वो बुझ गई है? You must have observed that the candle covered with glass tumbler got extinguished after some time, whereas the other candle continued burning. What can be the reason for this? Think about it. It seems that the candle got extinguished because the components inside of glass tumbler which supports burning is limited. Most of the components is used up by the burning candles. However, the other candles is getting continued supply of air. This component of air which supports burning is known as oxygen. कैंडल का जलना निश्चित है क्योंकि कोई वायु उसमें है जो भिन्न भिन्न ग्लास की लंबाई से कोई फर्क आता है। इसका क्या रीज़न है? इस जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। अब और कि इसी कारण ऑक्सीजन हमारे एक्सपेरिमेंट में लाए गए ग्लास में है, ये सीमित मात्रा है। जब ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जा सकती है तो कैंडल अधिक समय तक नहीं जल पाती है और वह बुझ जाती है। और अतिरिक्त जैसे कि मोमबत्ती बुझती है, जल ऊपर चढ़ जाता है और पानी के ऊपर उठने की घटना को मोमबत्ती के ग्लास में प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। Nitrogen. In activity number 3, did you observe that air is still present in glass bottle even after the candle blew out? This indicates the presence of some component in the air which doesn't support burning. The major part of air which doesn't support burning candle is nitrogen. आपने एक्टिविटी में देखा कि जो नहीं जला हुआ पार्ट है वो क्या है और जो नहीं जलता है उस पार्ट को हम नाइट्रोजन कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इन अ क्लोज्ड रूम, इफ there is some material that is burning, you may have felt suffocation. This is due to excess of carbon dioxide that may be accumulating in the room. As the burning continues, carbon dioxide makes up small component of the air around us. Plants and animals consume oxygen for respiration and produce carbon dioxide. Plant and animal matter also consumes oxygen on burning and produced mainly carbon dioxide and a few other gases. It is advisable not to burn dry leaves and discarded remains of the crop which pollute our surroundings. आप बंद कमरे में घुटन से महसूस करते हैं, सफोकेशन होता है कई बार, तो वो क्या है? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो सकती है। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि पौधे हैं और हम ह्यूमन हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, मतलब कि हम ह्यूमन हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हम कई सारे जलने की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। Dust and smoke. The burning of fuel also produces smoke. Smoke contains a few gases and fine dust particles and is often harmful. That is why you see long chimneys in factories. This takes a harmful smoke and gases away from our noses but bring it closer to the brink flying up in the sky. Dust particles are अवे प्रेजेंट इन अपने डस्ट एंड स्मोक। अब कई सारे पदार्थ जलते हैं, उसमें स्मोक होता है और वो उसमें गैसेस होती है और वो आपने कई सारे कारखानों में चिमनियाँ देखी होंगी, वो बड़ी ऊपर तक उठती होती है, पर वो हमारी नाक से तो इसे दूर ले जाते हैं, पर कई सारे बर्ड्स हैं उसके बहुत नज़दीक ले जाते हैं, इसीलिए उनको कई बार हार्मफुल होते हैं, मतलब उनके लिए। और डस्ट, स्मोक में डस्ट ऑफकोर्स होती ही है और उसी तरह एयर में भी धूल होती है। एक्टिविटी नंबर 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल, होम और होम। क्लोज all the doors and windows with curtain pulled down to make the room dark.
Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that it allows sunlight to enter the room only through a slit. Look carefully at the incoming beams of sunlight. आप इस एक्टिविटी के लिए घर पे या स्कूल में एक डार्क रूम मतलब कि जहाँ पे धूप तो आती हो वो ऐसा कमरा पसंद कीजिए और फिर उसे बंद कर दीजिए। सिर्फ हल्का सा एक ही उसमें साइड रखिए कि जहाँ से स्लाइटली धूप आ सकती हो। फिर आप वो सनलाइट जो है उसे आप मतलब कि देखिए, बीम ऑफ सनलाइट को नोटिस कीजिए, आपको क्या दिखाई देता है। डू यू सीन सम teeny shining particles moving in the beam of sunlight? फिगर 15.7 में आप देख सकते हैं। फिगर 15.7 observing presence of dust in air with sunlight. What are these particles? During winters, you might have observed similar beam of sunlight filtered through the trees in which dust particles appear to dance merrily around. आप इस एक्टिविटी से देख सकते हैं कि जो सूर्य किरण है उसमें कई सारे धूप में कण है, जो पार्टिकल्स है वो हम देख सकते हैं कि कैसे डांस करते हैं। विंटर में भी ये हम देख सकते हैं इजीली। दिस शो that air also contains dust particle. The presence of dust particle in air varies from time to time and from place to place. इससे क्या साबित होता है कि जो धूप है, एयर है, उसमें हम इजीली पार्टिकल्स देख सकते हैं और वो समय समय पे अपना स्थान बदलते रहते हैं। We inhale air when the breathe through our nostril. Fine hair and mucus are present inside the nose, prevent dust particles from getting into the respiratory system. आपने नोटिस किया कि हम जब श्वास लेते हैं तब हमारे नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं और धूल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे अंदर जाने से रोकते हैं। Do you recall being scalded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, harmful dust particles may enter your body. आपको कई बार पेरेंट्स डांटते होंगे कि आप मुंह से सांस मत लो, क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक होता है, क्योंकि उसमें से धूल के पार्टिकल्स है वो हमारे अंदर जा सकते हैं। We may conclude that air contains some gases, water vapor and dust particles. The gases in air, mainly nitrogen, oxygen, some amount of carbon dioxide and may other gases, however they may be some. इन सभी एक्टिविटी से यही कंक्लूजन निकलता है कि वो जो एयर है उसमें कई सारे गैसेस होते हैं। आप फिगर 15.8 में देख सकते हैं कि पॉलिसमैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफ्टन वियर अ मास्क, कि कैसे उन्होंने मास्क पहना है क्योंकि जो हानिकारक पार्टिकल्स है वो उनको हार्मफुल नहीं हो। Variance in composition of air from place to place. We see that air contains mostly nitrogen and oxygen. In fact, these two gases together make up 99% of the air. The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapors. Figure 15.9. हम इस फिगर में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही 99% पार्ट वो रोक लेती है और 1% है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेस उसमें होते हैं। ओके, थैंक यू।